Chaprauli is a small village in Uttar Pradesh's Bagpat district. Peaceful, simple, and yet holding a story of untapped potential. Life here unfolds amidst traditions and fails, but opportunities are limited. Women literacy barely crosses 50%, lagging behind the nearly 80% literacy rate of men. The mindset here is familiar. Government jobs, farming, and early marriage shape most lives. For many women, education is seen as a luxury rather than a priority. In today's tech-driven world, many students in Chaprauli have never even touched a laptop. But even the smallest spark can ignite a transformation. Our mission is very simple. We want to empower millions of students in the areas where they could build skills and create value for the country. And we are not just going to empower them with the technologies of today, but we also empower them with technologies in such a way that they are more empowered to deal with the future. Skill Up India 4.0 in partnership with NSDC aims to rewrite the story of every student across India, from rural roots to urban centers. This journey in Chaprauli began with the support of Shri Jayant Singh Chaudhary, Minister of State, Skill Development and Entrepreneurship, who brought Skill Up India 4.0 to Chaudhary Charan Singh Rajkiya Mahavidyalaya. The college principal shared this vision and welcomed the opportunity to educate 30 young women in 4.0 technologies. मैं आपसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो कॉलेज है ये श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के नाम पर है और उनका कहना ये था, जो उनकी एक बहुत फेमस कहावत है कि देश का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास भी संभव नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कई बातें हैं, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण उन्होंने उस दौर में भी अपने दौर ये बातें कही कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके जो बच्चे हैं वो तकनीकी रूप से सशक्त होने चाहिए। तो जब मुझे ये प्रक्रिया पता लगी, कौशल विकास मंत्रालय जो चौधरी जयंत सिंह जी के उसमें है उनके प्रभार हैं वे, तो मुझे पता लगा कि यहाँ इस प्रकार की उनकी योजना है, तो मुझे चौधरी साहब के वे शब्द याद आए और मैं ये महसूस करता था कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज हैं इन पर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का भी और इस प्रकार की योजनाओं का भी। बिल्कुल। तो जब हमने आपस में बातचीत की और वहाँ चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा भेजे गए उनके अफसर NSDC के लोग, तो तब मैंने उनसे जब बातें की तो मुझे लगा कि अब वो चौधरी साहब का स्वप्न पूरा होने जा रहा जो उन्होंने उस वक्त देखा था कि अगर ग्रामीण बच्चे किस प्रकार से तकनीकी रूप से सशक्त होंगे, क्योंकि जब हम तकनीक की बात करते हैं तो हम वैज्ञानिक सोच की भी बात करते हैं। Under the mentorship of NextWave's Ajay, these students who never even used a computer are now confidently coding and mastering tech skills in just 3 months. They are also building soft skills and preparing for the industry with confidence. आगे जाकर मैं यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह देकर सारे इंटरव्यूज क्रैक करके असेसमेंट क्रैक करके मैं यहाँ पर ट्रेनर के रूप में आया हूँ। तो आप वो सब चीज़ें क्रैक कर चुके हो जी, और आप उनके सामने एक प्राइम एग्जांपल हो। हाँ। लेकिन उनके साथ ही साथ कदम मिला के चलने के लिए आप उनके साथ आज इस हॉस्टल में रह रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर मैं ही हूँ, जब देख पा रहे हैं आप। Joining the NextWave Intensive 3.0, I have no idea about the coding and languages, IT and NextWave, NSDC, no, nothing. But after joining this, I have learned the codings and using the HTML, CSS, Bootstrap, and currently I am learning the Python language, and this is so interesting for me, and I am so excited to continue this journey with NextWave. सर पापा ने बोला कि तुम्हारी मैम ने फ़ोन किया है, नीलिमा मैम ने, कि तुमने टेस्ट केस क्लियर कर लिया है, अब तुम 10 बजे जाना कल कॉलेज में और अपनी ज्वाइन करना क्लासेस। जो फिर हम फर्स्ट डे आए तो हमने नीलिमा मैम यहीं पे ही थी, उन्होंने हमें बोला कि ऐसे तुम ये लैपटॉप है, ये पर्सनली तुम्हारा है, इस पर एक लर्निंग पोर्टल होगा, उसमें तुम अपनी क्लासेस ज्वाइन करोगे, तुम्हारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। और तो इसके बाद में फिर हमने अपनी डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, शुरू कर दिया। और 10 से 3 का सेशन चलता है आप लोगों का ना हर दिन का? 10 से 3 बजे तक। फर्स्टली हमें कुछ नहीं पता था, जब यहाँ पे टीम आई नेक्स्ट वेव की, हमें नेक्स्ट वेव भी हमने पहली बार ही सुना था कि क्या इसमें कोर्स है। ये अब
जब उन्होंने बताया तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एनिमेशन करूं। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट एनिमेशन में था, लेकिन मैंने 2 क्लास ली, फर्स्ट डे और सेकंड डे। फिर मुझे एनिमेशन से अच्छा IT कोर्स लगा। कैरियर के लिए हमने इन्हें कहा कि बेटे एडमिशन ले लो इसमें। ये BA उसमें फाइनल था इसका और यही था कि भाई अपने पैरों खड़े होने की कोशिश करो। और हमारा जो ध्येय है बच्चों को पढ़ाने का ही है। उनका अथक परिश्रम जो है वो भी कॉलेज में गए, उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर पाऊँगा और उन्होंने ये काम किया। हमारी छपरौली के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। इससे बड़ा और योगदान क्या हो सकता है। यहाँ पे साइंस भी कर रहा है और ये दूसरे जो सब्जेक्ट हैं जिनके यहाँ नहीं है कुछ भी, वो यहाँ पे बड़ों जावे दूर जावे, हमारे बच्चे यहीं पढ़े। जो हमारे सहयोग होगा वो करेंगे। जहाँ तक आप जाना चाहते हो वो भी हम तैयार हैं उसके लिए सारी चीज़ें। सर कभी आपको मन में ऐसा नहीं आया कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इतना पढ़ के छोड़? नहीं, इतना वैसे मैं एग्रीकल्चर से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी MSc हूँ। मुझे इतनी जानकारी है कि मेरा फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ाई से, लेकिन ये करेंगे तो इनका रिजल्ट मिलेगा नहीं कुछ बेहतर। अब देखिए मतलब 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम तो हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स अच्छे ही आएँ। सर लोगों का तो वही मानना है कि यही मानसिकता होनी चाहिए। अरे नहीं है तो काम कराओ, पढ़ाई बाद में। अब तो बहुत अंतर हो रहा है गाँव में शहर में, पहले जैसे था उससे बहुत अलग है। विलेज की जो मतलब सोच होती है उसमें हमने कभी नहीं सोचा था कि प्राइवेट जॉब्स में भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। हमें हमेशा ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही बेटर है और मैं भी उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, ये एक मतलब एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में। सर मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो कोर्स की अपॉर्चुनिटी है ना, अगर उन्हें फ्यूचर में कभी मिले तो वो जो इसे बर्बाद ना करे, इसे ले, इसका फ़ायदा उठाए और इससे फ़ायदा उठाने के बाद में एक जॉब प्राप्त करे जिससे उनका फ्यूचर बिल्ड हो सके। मुझे खुद कोडिंग से डर लगता था उस टाइम पे और मुझे सच में समझ में नहीं आती थी कि, और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं ये सब सीख पाऊँगी। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ और आई ओवरकम माई फियर अबाउट द कोड। अभी इंटरेस्ट है फ्रंट एंड में, लेकिन मैं दोनों करना चाहूँगी। वेबसाइट दिखाती हूँ कि मम्मी मैंने ये डेवलप किया है, तो मम्मी बोलती है कि अच्छा है लेकिन और अच्छे कोशिश कर। For parents, skepticism has turned into pride as they watch their daughters embrace technology and build web apps all by themselves. Through NextWave Skill Up India 4.0, the change has begun. In the heart of rural India, where opportunities once seemed distant, a new wave of transformation is taking shape. This isn't just about teaching skills, it's about empowering dreams, breaking barriers and creating pathways where none existed. With each passing day, the initiative is lighting up lives and giving students the tool they need to shape their future. And as the fire of change spreads, it's no longer just a distant hope, it's a movement, one that promises to be the motivation for a new India. Together, let's build a Naya Bharat.